Hello everyone, very good morning to you all. Hope things are going smoothly and you all are doing your study properly. I hope you must have seen the video what I have sent it at the last time, at the last session, and you have studied from that also. In last video, we were discussing about the refraction of light through prism. This particular topic has two parts. One is refraction that we already has been covered. Another is dispersion of light. Or the term dispersion of light through the prism is that if white light is incident on the prism, it is splitted into its constituent rays of light, or we can say constituent colors of wave, इस टर्म एज इट डिस्पर्सन. इस तरह से कि जैसे प्रिज्म पर ये वाइट रे पड़ी और इसके बाद इस अपने सारे कंपोनेंट में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया. इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं. Here our discussion basically based on two terms. First is how does dispersion takes place, why different component of light get dispersed, get splitted into its constituent. First question is that. And second, how dispersion of a prism, how a prism can disperse a light, the nature of dispersion measured by the dispersive power, and some other term we will discuss. So let us start our discussion with dispersion of light in ray optics. Dispersion of light. कुछ उस तरह से डिस्पर्सन होता है. In last term, if you all remember that, we have studied the deviation of light. It means in refraction of light through the prism, in which we learned that light get deviated, and the deviation of light delta is equal to an important equation we have got, that is A into mu minus 1, where mu is the refractive index of material of prism. This particular equation we have derived. In that time, we have discussed that this is the main phenomena, main criteria why light, it means white light or different component of white light get dispersed, because they are deviated different angle with the different component. हमने क्या बात किया था लास्ट टाइम पर, हमने कहा था कि यही वो इक्वेशन है जो डील करता है किसके साथ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से. क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट अगर हम देखें तो वो डिफरेंट है कैसे, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग. वायलेट से लेकर रेड तक की वेवलेंथ क्या है, 360 to 780 के आसपास, 740 के आसपास. ये कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है वेवलेंथ का. और एक चीज और है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ का कंपोनेंट होगा वो डिफरेंट एंगल से डेविएट होगा. कैसे डिफरेंट एंगल से डेविएट होगा, क्या है, एक इक्वेशन है काशी इक्वेशन. और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू होता है a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाई लैम्डा पावर 4
और इस तरह से ये बढ़ता जाता है। इन जनरल कुछ बुक में ऐसा भी लिखा है कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ये भी लिखा है। ए या म्यू नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है जिसको काशी कांस्टेंट भी बोलते हैं। Bihal, the particular equation is sufficient to our intuition. How does light या refractive index of material is depend on the wavelength of light, or we can say this is the relation between refractive index and wavelength of light. Now if we see the spectrum of white light, we will see that different component of white light has different wavelength. If wavelength is changes, obviously refractive index is also changes. Therefore light deviated, it means different component of light get deviated by different angle. If this thing is happen, अगर ऐसा होता है तो हम क्या पाते हैं, हम कुछ इस तरह का फिनोमिना पाते हैं। और ऐसा हम देखते ये हैं, उसमें से मान लो हम कोई दो एक्सट्रीम कलर लेते हैं ऐसे, मान लो एक रे ऑफ लाइट जिसमें जो व्हाइट लाइट है इस तरह से इस पे इंसिडेंट की, इसमें सभी साथ के साथ कलर हैं। हम दो कोई कंपोनेंट लेते हैं, एक मानते हैं रेड वाला इस तरह से गया, वायलेट वाला कुछ ऐसे गया, डेविएशन हुआ ये इस तरह से गया, और इसमें भी इस तरह से। तो एक का जो डेविएशन अगर हम देखें, इसको अगर इनिशियली इसका जो रियल इनिशियल रे का जो पाथ था वो ये वाला था ऐसे, एक रेड वाला जो है ये रेड है और ये वायलेट है, ये वाला जो एंगल है यही डेविएशन एंगल होता है। रे ऑफ लाइट का पाथ ये था, रेड वाला इतना मुड़ गया तो डेविएशन एंगल ऑफ रेड डेल्टा आर। और डेल्टा आर लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे कि रेड का जो होगा वो ये तो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1। उसी तरह से वायलेट वाला अगर देखोगे तो ये वाला एंगल जो है इतना, ये डेविएशन एंगल ऑफ वायलेट है जो सबसे ज्यादा है, यानी डेल्टा V इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इंटू म्यू V -1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अलग अलग कंपोनेंट का अलग होगा, किसके हिसाब से, काशी इक्वेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, और यही रीजन है कि वाई लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं। अब अलग अलग एंगल से जब डेविएट होंगे तो सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यहीं पर एक टर्म डिफाइंड है, डिस्पर्सन एंगल, ये वाला एंगल है। कोई दो डिस्पर्सन एंगल किसी दो कंपोनेंट के बीच में लिया जाएगा, तो हम देखते हैं कि रेड वाला इतना है, ये इतना, और सॉरी वायलेट वाला इतना है और रेड वाला इतना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ये इतना, ये वाला एंगल बेसिकली ऐसा, इसी को हम डिस्पर्सन एंगल बोलते हैं। और डिस्पर्सन एंगल इक्वल टू क्या होगा, डिस्पर्सन एंगल को थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि A इंटू म्यू V -1 माइनस A इंटू म्यू R -1।
ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर। ये डिस्पर्सन एंगल है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। एक टर्म और डिफाइंड है कि इसकी किसी लेंस की लाइट को डिस्पर्स करने की पावर जो होती है उसको डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर जो डिफाइंड है वो है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, या कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डिस्पर्सन बाई मीन डेविएशन। अब पहले तो मीन डेविएशन क्या होता है, यानी एंगल ऑफ डिस्पर्सन अपॉन डेविएशन ऑफ येलो लाइट। अगर हम एक बार फिर से वो देखें, स्पेक्ट्रम को ध्यान दें, तो स्पेक्ट्रम की जो एक्सट्रीम वैल्यू है, रेड की मैक्सिमम वैल्यू है और वायलेट की क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो दोनों की एक्सट्रीम वैल्यू को अगर हम लेके उसका मीन ले लें तो वो जो वेवलेंथ आ रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, येलो से कर रहा है। इसीलिए इसको हम मीन डेविएशन किसका लेते हैं, येलो के केस में लेते हैं। हम एक फिगर और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि मीन डेविएशन का केस कैसे होगा। मान लेते हैं कि एक लाइट यहां से इंसिडेंट की, एक डेविएशन ये हुआ, ये रेड है, ये वायलेट है और ये येलो है। येलो को ही हम मीन डेविएशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक स्पेक्ट्रम देखें तो दो एक्सट्रीम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम मीन लेते हैं तो किससे बिलोंग करता है, येलो वेवलेंथ, मतलब येलो कंपोनेंट जो होता है या येलो लाइट का जो वेवलेंथ होता है उससे बिलोंग करता है, उस रेंज से बिलोंग करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको मीन डेविएशन लेते हैं और तब हम डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा डेविएशन एंगल ऑफ येलो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से डिस्पर्सिव पावर कितनी हो जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। दो चीजें और हम ऐड करते हैं यहां पर, एक तो डिस्पर्सन एंगल, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ए इंटू म्यू आर म्यू वी माइनस म्यू आर, और एक आ गया हमारे पास ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो ये इस तरह से लाइट क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, अपने कंपोनेंट में स्प्लिट होती है। उसके पीछे रीजन लाइट का वेव नेचर है, यानी डिफरेंट कंपोनेंट जो कि वेवलेंथ जिनकी अलग है, और वेवलेंथ अगर अलग होती है तो वो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो अलग होता है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो यहाँ से देखें एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। मतलब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट will deviated by the different angle, so it get splitted
एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसी तरह से क्या होता है, लाइट डिस्पर्स हो जाती है। इसमें दो टर्म डिफाइंड है। एक क्या है, डिस्पर्सन एंगल कितना होता है। हम कोई दो कंपोनेंट लेते हैं, बेहतर हमने दोनों एक्सट्रीम कंपोनेंट ले लिया, दोनों के डिफरेंस निकाल लेते हैं। डेविएशन एंगल का वही एंगल क्या होता है, डिस्पर्सन एंगल होता है। और एक टर्म और डिफाइंड है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, और वो क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्पर्सन एंगल एंड मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किसका लिया जाता है, येलो का। किस तरह से लिया जाता है कि स्पेक्ट्रम में दोनों एक्सट्रीम वेवलेंथ की मीन लेने पर वो जो वैल्यू आती है वो येलो की आती है, इसलिए येलो को हम क्या लेते हैं, मीन डेविएशन लेते हैं। तो ये क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। बोर्ड इसमें कुछ एक डिफरेंट चीजें पूछता है। उस डिफरेंट चीज में क्या है, एक तो ये है कि इस तरह से डिस्पर्सन हो गया, ठीक है, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है, और एक कॉम्बिनेशन को एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और उसमें हमसे पूछा जाता है कि हम चाहते हैं कि मिनिमम डिस्पर्सन हो, मैक्सिमम डेविएशन हो, इसकी कंडीशन क्या होगी। और दूसरा क्या पूछता है कि मिनिमम डेविएशन हो और मैक्सिमम डिस्पर्सन हो, इसकी क्राइटेरिया क्या होगी। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो कुछ इस तरह से बिलोंग है कि दो प्रिज्म ऐसे लिए जाएं। अब इस तरह से दो प्रिज्म लिए जाएंगे तो देखो लाइट एक बार तो स्प्लिट हो ही रही है, दूसरा प्रिज्म क्योंकि इसके अपोजिट सेंस में रखा है तो उसको कंप्रेस करके फिर एक लाइट में कन्वर्ट कर दे रही। इस फिनोमिना पे बेस्ड है ये वाला, तो हम लोग वो वाला सीखते हैं, हम इसको रफ करेंगे। क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे होगा। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन देखो, मान लो एक प्रिज्म है ये, इसी पर एक प्रिज्म और रख देते हैं उस तरह से। ऐसे मानते हैं इसका प्रिज्म का एंगल ए है, इसका कुछ ए प्राइम है, इसका रिफ्रैक्टिव ये वाला, दोनों अलग अलग भी ले लेते हैं क्योंकि मानते हैं एक फ्लिंट ग्लास का एक क्राउन ग्लास का है, तो यहाँ पर मैटर नहीं, हम इसका मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू प्राइम है। अब उसमें पहला केस हम लोग एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में लेते हैं कि मिनिमम डिस्पर्सन हो और मैक्सिमम डेविएशन हो। फॉर मिनिमम डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन क्या हो, कम हो, एंड मैक्सिमम डेविएशन हो। वो सिचुएशन कैसे होगी देखो, मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट की, दो कंपोनेंट लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि ये रेड इतना डेविएट हुई, येलो इतना डेविएट हुई। अब अगला प्रिज्म इसका अपोजिट है, तो वो क्या करेगी, लाइट को यहाँ पे इसने इस सेंस में और इसने इस सेंस में मोड़ दिया, तो जो रे ऑफ लाइट हमको निकली अगेन व्हाइट लाइट निकल गई, और जो इनिशियल रे थी उसको हम ऐसे ही प्रोसीड अगर कर देते हैं, ये इनिशियल रे थी, ये वायलेट है और ये रेड है, और यहाँ से फिर से व्हाइट लाइट यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ पर भी क्या लिया गया था, व्हाइट लाइट लिया गया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि वो डेविएशन तो हो बट डिस्पर्सन ना हो। तो यही केस लगाते हैं, हम कहते हैं कि फॉर
मिनिमम डिस्पर्सन यानी जो नेट डिस्पर्सन आए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और डिस्पर्सन क्या होता है, दो कंपोनेंट में कितना लाइट डिस्पर्स हो रही है उनके डेविएशन का डिफरेंस। यानी हम कह सकते हैं कि जो थीटा नेट होगा, और थीटा नेट क्या होगा कि मान लो ये वाला इसका डिस्पर्सन एंगल थीटा है और इसका थीटा प्राइम है, इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। डिस्पर्सन जीरो होना चाहिए, मिनिमम मतलब जीरो। और डिस्पर्सन का हम लोगों के पास वैल्यू है, क्या वैल्यू है, इसके लिए डिस्पर्सन लिखते हैं। डिस्पर्सन वहां देखिए a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस, क्योंकि इसका हमने एंगल अलग लिया है तो इसका हो जाएगा a प्राइम इंटू म्यू वी प्राइम माइनस म्यू आर प्राइम। इसकी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, प्लस वाली, इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। या यहां से क्या हो जाना चाहिए, a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर इक्वल टू माइनस ए प्राइम इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्राइम। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें और हमको चीजें दी रहेगी तो मान लो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म पूछ सकता है, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे दे। नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ एक बार, उसमें दूसरे प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है कि फॉर ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, या ये सिचुएशन फॉर मिनिमम डिस्पर्सन एंड मैक्सिमम डेविएशन के केस में एक प्रिज्म की सारी डिटेल दी है, दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और हमसे पूछा कि उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, यानी ए प्राइम पूछ लिया गया। और ए प्राइम देखोगे कितना हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है कि म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वी प्राइम माइनस म्यू आर प्राइम। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट second prism set just opposite to the first prism, या नेगेटिव साइन हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो दूसरा प्रिज्म होगा वो अपोजिट सेंस में रखा गया है फर्स्ट प्रिज्म से, इसलिए ये इतना आता है। इसको हम इक्वेशन 1 बनाते हैं, इसका एक और फॉर्म दिया जाता है। 1 में हम क्या करें कि म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमको, देखो फ्रॉम 1 में क्या करना है, म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। म्यू क्या होगा, मीन डेविएशन होगा। मीन डेविएशन किसके लिए होता है, येलो के लिए होता है। तो देखो हम कहते हैं कि a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। इक्वल टू माइनस ए प्राइम इंटू म्यू प्राइम माइनस 1 म्यू वी प्राइम माइनस म्यू आर प्राइम अपॉन म्यू प्राइम माइनस 1। ये जो म्यू हम रख रहे हैं या म्यू माइनस 1 लिख रहे हैं, म्यू इज मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन किसके लिए होता है, येलो के लिए, यानी म्यू फॉर येलो।
अब देखो ये इक्वेशन थोड़ा दूसरी तरह से हो गया, a इंटू म्यू माइनस वन, ये कितना हो जाता है, डेल्टा मीन होता है। देखो a इंटू म्यू माइनस वन, ये डेल्टा हो गया, म्यू भी माइनस वन इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन, ये होता है। और म्यू किसके लिए है, मीन डेविएशन के लिए, तो क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू माइनस ये डेल्टा प्राइम दूसरे प्रिज्म के लिए, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्राइम। तो ये भी एक फॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म मस्ट बी राइट इन दिस वे, डेल्टा इंटू डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ या डेविएशन ऑफ या मीन डेविएशन ऑफ सेकेंड प्रिज्म। तो ये दो फॉर्म होते हैं, कब, जब कॉम्बिनेशन कैसा हो, एक्रोमेटिक हो। एक्रोमेटिक इन द सेंस कि मिनिमम डिस्पर्सन और मैक्सिमम डेविएशन हो। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अपोजिट क्या होगा कि डिस्पर्सन तो हो या मैक्सिमम डिस्पर्सन हो, डेविएशन मिनिमम हो, वो क्या होगा। दूसरा सिचुएशन, फॉर मैक्सिमम डिस्पर्सन एंड मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। ये कैसे होगा, सेटअप अब भी ऐसे ही है, फर्क क्या है बस इतना देखो। जैसे मान लो एक प्रिज्म ये है, दूसरा प्रिज्म कुछ ऐसे ही यहां पर लगा है। अब भी इसका एंगल ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका एंगल ए प्राइम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू प्राइम है। एक रे ऑफ लाइट जो कि वाइट है, वाइट लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है। पहला प्रिज्म क्या करेगा, इसको डिस्पर्स कर देगा, जैसे कि पहले केस में हुआ था, सेम वैसे। अगर डिस्पर्स होगा तो देखोगे एक लाइट ऐसे जाएगी और दूसरी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। दूसरे प्रिज्म के अंदर ऐसे, ये मान लो वायलेट है, ये रेड है, ये वायलेट, ये रेड। पहली रेज कैसे गई होगी, कुछ इस तरह से गई होगी। तो अभी लाइट डिस्पर्स हो रही है, डेविएशन कम से कम हो रहा है लेकिन डिस्पर्सन हो रहा है। तो ये दूसरी सिचुएशन पढ़ते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि फॉर ये ऊपर वाली, फॉर मैक्सिमम डिस्पर्सन एंड मिनिमम डेविएशन, यानी मिनिमम डेविएशन हम कहेंगे कि फॉर मिनिमम डेविएशन जो होगा, जो डेल्टा नेट आएगा वो 0 होगा। डेल्टा नेट क्या होगा कि इसका मान लेते हैं डेल्टा है और इसका मान लेते हैं डेल्टा प्राइम इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये जो डेविएट कर रहा है, ये जो डेविएट कर रहा है वो डेल्टा है, और ये इसका क्या कर रहे हैं, डेल्टा प्राइम ले रहे हैं। डेल्टा इक्वल टू होता क्या है, कितना होगा या कितना डेविएशन है, तो हम हमेशा मीन का लेंगे। तो उसका हम लिखते हैं, देखो, यानी इसके लिए भी लिखेंगे क्या होगा, ए इंटू डेविएशन एंगल का फार्मूला ये है, इंटू म्यू, और म्यू कैसा होगा, येलो लाइट के लिए होगा -1 प्लस ए प्राइम इंटू म्यू प्राइम येलो -1 इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं ए इंटू म्यू -1 इक्वल टू -a प्राइम इंटू म्यू y प्राइम -1। सिंपल है। किसी प्रिज्म का डेविएशन एंगल के लिए अगर बात करना है तो सिर्फ हमको उसका क्या लिया जाएगा, मीन डेविएशन लिया जाएगा।
यहाँ भी हमको मिलेगा, अगर हम ए प्राइम निकालना चाहते हैं तो हमको मिलेगा माइनस ए इंटू म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई प्राइम माइनस वन। ये डेविएशन पहले प्रिज्म के लिए है और ये वाला किसके लिए, दूसरे के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही है, शायद किसी टाइम पे पूछा था सीबीएसई ने कि मिनिमम डिस्पर्सन और मैक्सिमम डेविएशन की सिचुएशन क्या होती है, और दूसरा क्या होता है कि मिनिमम डिस्पर्सन और मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डिस्पर्सन का केस क्या होता है। तो उसको हम इस तरह से डील करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म इतना ही है। बेसिकली दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक क्या होता है कि डिस्पर्सन एंगल क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, और दो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। और वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन जिसमें लाइट क्या हो रही है, डिस्पर्सिव नहीं नेचर, व्हाइट लाइट ही इंसिडेंट करते हैं और व्हाइट लाइट ही क्या होती है, मिलती है। और दूसरे में क्या हो रहा है कि व्हाइट लाइट इंसिडेंट तो होती है लेकिन वहां पर लाइट व्हाइट ना मिलके बल्कि कैसे मिलती है, वो अपने सारे कंपोनेंट में स्प्लिट हुई रहती है। इसको एक नाम और देते हैं, जो डिस्पर्सन होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट विजन ऑफ प्रिज्म। कुछ राइटर ये भी लिखते हैं। तो ये दो केसेस जो इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन ही है। इतना ही डिस्पर्सिव में रहेगा। यहाँ तक सब लोग स्टडी कर जाएं, यहाँ तक रिवाइज कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। अब इसमें एक ही टॉपिक बच रहा है और वो बच रहा है इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसमें दो हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था प्रिज्म के साथ, प्रिज्म के लिए। और मुझे लगता है, आई होप आप सब इसको समझ पाए होंगे और इसको एक बार रिवाइज करके इसके नोट्स तैयार कर लेंगे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय करें और स्टडी भी करते रहें। थैंक यू।